Alright, so today we are going to start with next chapter, rotational dynamics. So there are some prerequisites जैसे आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम पता होना चाहिए, आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पता होना चाहिए. You should be knowing radius of gyration of different types of bodies, about different axis of rotation, so on so forth. आपको total energy of rolling motion पता होना चाहिए, आपको kinetic energy of rotational motion पता होना चाहिए. You should know where to apply law of conservation of angular momentum. तो ये 7-8 चीजें प्रीरिक्विजिट है. अगर आपको ये सब पता है then this particular topic will be very easy for you to solve. So let's start with question number 1. As a solid sphere is rotating freely about its axis of symmetry in free space. So first of all, what do you mean by axis of symmetry? Axis of symmetry मतलब एक ऐसा axis जिसके about mass distribution symmetric हो and that happens to be diameter in case of solid sphere or hollow sphere. So there is a solid sphere which is rotating about an axis passing through its center of mass, or you can say about diameter. क्योंकि solid sphere या hollow sphere ऐसे bodies हैं जिस केस में अगर center of mass में से axis pass हो रहा है तो diameter से ही pass होगा always. Disk ring ये अलग cases होते हैं. Okay? So the radius of the sphere is increased, keeping its mass same. Which of the following physical quantity would remain constant for the sphere? So what happens if I increase the radius of the sphere keeping its mass same? ऐसा अगर कर दिया, okay, radius बढ़ाया है ना, so what will be constant? Angular velocity, moment of inertia, rotational kinetic energy, angular momentum. The simple answer is angular momentum. Why? Because you know that आपने ये पढ़ा होगा law of conservation of angular momentum. आप बोलते हो angular momentum of a body is constant if the external torque acting on the body is constant. So basically the idea is dl by dt, rate of change of angular momentum, is equal to torque. करेक्ट. जब टॉर्क कांस्टेंट है, टॉर्क कांस्टेंट है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? जीरो होगा. गुड. आई एम ट्राइंग टू मेक यू कंफ्यूज हियर. सिंपल सी चीज है. एक बात बताओ, इफ एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग इज जीरो तो dl by dt is zero. When derivative of a quantity is zero, when that quantity is constant. So when L is constant. तो देखो ऐसा है, पूरे क्वेश्चन में बोला है कि रेडियस बढ़ाया है. ऐसा बोला है कि हमने टॉर्क बढ़ाया? टॉर्क नहीं बढ़ाया. मतलब ऐसा बोला है कि हमने टॉर्क अप्लाई किया? ये भी नहीं बोला. तो टॉर्क अप्लाई नहीं किया मतलब टॉर्क इज जीरो. इफ टॉर्क इज जीरो, dl by dt is zero. If dl by dt is zero, L is constant. So what is constant? Angular momentum. Angular velocity omega cannot be constant. Why? V is equal to r omega. So omega is v by r. आप radius बढ़ा रहे हो तो omega कम होगा. So it cannot be constant. Moment of inertia cannot be constant because for a sphere, if you know, moment of inertia for a solid sphere is 2 by 5 mr square. r बढ़ेगा तो I बढ़ेगा. So it cannot be constant. Rotational kinetic energy cannot be constant because rotational kinetic energy is half I omega square. लेकिन I itself depends on R. So because I increases, because R increases, hence kinetic energy also increases. तो क्या बचा फिर? Angular momentum is constant because there is no torque acting on the system. So there is no torque acting on the system. Next question. The moment of force F bar at point 2, 0, -3 about a point 2, -2, -2 is given by.
मैंने ये इंटेंशनली यहाँ पे क्वेश्चन रखा है बिकॉज यू नो मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क आर बार क्रॉस एफ बार, ये हमारी आदत है विच इज नॉट करेक्ट टू सम एक्सटेंट। व्हाई नॉट करेक्ट? क्योंकि ये अजम्पशन होता है यहाँ पे कि आपका वन पॉइंट इज ओरिजिन, है ना। तो मतलब बेसिकली एक्सिस को आप नॉर्मली हमेशा ओरिजिन पे रखते हैं, है ना। तो यहाँ पे वैसा नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, आर माइनस आर जीरो बार क्रॉस एफ बार, राइट। तो मोमेंट ऑफ फोर्स एफ बार, एफ बार को आपको दिया है, सो एफ बार इज 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप एट, दिस इज इंपॉर्टेंट, व्हेन दे से एट मतलब ओरिजिन आपका शिफ्टेड है यहाँ पे, तो ओरिजिन इज 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप, और आर बार is the other point 2i cap minus 0j cap minus 3k cap। तो आप क्या करोगे, r minus r bar करोगे, r minus r0 bar करोगे, जो भी मिलेगा यहाँ से whatever you get, right। और f bar है तो वो f bar मतलब ये f bar, और ये जो मिलेगा इसको सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे, एंड देन यू नो हाउ टू फाइंड आउट डिटर्मिनेंट से आपको क्रॉस प्रोडक्ट मिल जाएगा, राइट। तो ये मैं सॉल्व नहीं करके देने वाला हूँ, इट इज जस्ट टू टेल यू, ये नॉर्मली अजम्पशन होता है दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन इज एट origin normally। Next question, which is wrongly printed by the way, two discs of same moment of inertia, I1 equal to I2 equal to I, rotating about their regular axis, passing through center, it is important, and perpendicular to the plane of the disc with angular velocities omega 1 and omega 2. They are brought into contact face to face coinciding the axis of rotation. The expression for loss of energy during this process is, so ऐसा है, you have one disc which is rotating about an axis, passing through center of mass and perpendicular to the plane. You have another disc passing through center of mass and perpendicular to the plane. इस केस में, पहले केस में ओमेगा 1 एंगुलर स्पीड है, दूसरे केस में ओमेगा 2 है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का सेम है। अब इन दोनों के दोनों डिस्क को आपने फेस टू फेस कांटेक्ट में लाया, सो वन ओवर द अदर, समथिंग लाइक दिस, राइट, एक के ऊपर, एंड देन दे आर रोटेटिंग अबाउट द सेम axis of rotation with some value of angular velocity omega final. Loss of energy. How do you loss of energy? Minus energy minus initial energy. तो पहले तो आप initial energy find कर लो. What is total initial kinetic energy? Half I omega 1 square plus half I omega 2 square. So basically I will just take out I common and I will say this is initial energy, right? What will be final energy? Half I total, क्योंकि दो डिस्क है, omega final square. Good. Now I total is obviously I plus I, क्योंकि दोनों का पहले डिस्क का दूसरे डिस्क का सेम था, तो 2i। ओमेगा फाइनल निकालने के लिए ऐसे केसेस में हमेशा ये प्रॉब्लम होता है ना कि वेयर टू अप्लाई व्हाट कॉन्सेप्ट। इन रोटेशनल मोशन ना, जब दो डिस्क कंबाइन कर रहे हो तो हमेशा एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल। व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम? पहले का I omega 1 plus I omega 2, दिस इज
I plus I 2i final, क्योंकि कंबाइन कर दिया, ओमेगा फाइनल. So after you solve this, you have omega final as omega 1 plus omega 2 by 2. Okay. So now this should go in equation number 2. Omega final will go into equation number 2. Therefore, you will have final kinetic energy as half I total that is 2i. उसके बाद ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 का स्क्वायर, कैंसल, दैट इज 1 बाई 4 आई ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 होल स्क्वायर, राइट. क्यू हाफ आई टोटल, आगे टोटल इज 2i, ओमेगा फाइनल इज ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 का स्क्वायर. अभी मैंने 2 कैंसिल कर दिया और ये जो 2 है इसका स्क्वायर करके बाहर निकाल दिया. गुड इनफ. नाउ लॉस इन एनर्जी डेल्टा E. दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज फाइनल माइनस इनिशियल, है ना. अभी फाइनल ज्यादा कि इनिशियल ज्यादा नहीं पता, मॉड डाल दो. यू डोंट पुट अ मॉड, राइट. तो पुट अ मॉड E फाइनल माइनस E इनिशियल, दैट इज 1 by 4 I omega 1 plus omega 2 whole square minus this was, याद है, half I omega 1 square plus omega 2 square. इसको सॉल्व करो. अब इसमें से हाफ I तो मैं पहले ही कॉमन निकाल लेता हूँ, I by 2. So here you will have 1 by 2 omega 1 plus omega 2 square is omega 1 square plus 2 omega 1 omega 2 plus omega 2 square minus omega 1 square minus omega 2 square. So cancel, 2 to be cancel. So you will have I by 2 अंदर वापस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2. अच्छा हाफ रह गया, कोई बात नहीं, तो हाफ रह गया यहाँ पे. तो I will better not complicate process. Let's not complicate this. इसको ऐसे ही रखते हैं. I by 4 omega 1 square plus 2 omega 1 omega 2 plus omega 2 square minus half I omega 1 square minus half I omega 2 square. अब इसको सॉल्व करते बैठो. ओके, जस्ट सॉल्व दिस. तो जो भी आएगा फाइनली मल्टीप्लाई करो इसको, इजी है. मॉड में आखिर में कर लूंगा. हाउ डू यू डू कैलकुलेशन इन सिंपल वे? कैसे करोगे? ओके, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 ये नहीं करना है हमको. क्यों नहीं करना है? लुक एट दिस. मैंने सिर्फ पहले टर्म में जो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 होल स्क्वायर था उसको एक्सपेंड किया है. यहाँ पे ओमेगा 1 स्क्वायर बाय 4 है, यहाँ पे ओमेगा 1 स्क्वायर बाय 2 है. 1/4 में से हाफ गया, माइनस 1/4 बचेगा. हाँ, 1 में से हाफ गया, हाफ बचता है. हाफ में से 1/4 गया, 1/4 बचता है. 1/4 में से 1/8 गया तो 1/8 बचता है. करेक्ट. अभी यहाँ पे ओमेगा 1 स्क्वायर बाय 4 है ना पहले टर्म में. दूसरे टर्म में क्या है? ओमेगा 1 स्क्वायर बाय 2. तो 1/4 में से हाफ गया तो माइनस 1/4 बचेगा. तो यू शुड नो बेसिक थिंग्स. So after you subtract, you will have I omega 1 square by 4 with a negative sign. Similarly, I omega 2 square with a negative sign. और यहाँ पे सिर्फ आपके पास बचेगा plus 2 by 4 I omega 1 omega 2. Good. Calculations you have to do. No one can help you out if you are not able to do these things. Okay, तो ये easy चीज है. तो ये अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा. मैं नेगेटिव साइन निकाल लेता हूँ. मैंने पहले ही बोला कि मैं मॉड वैल्यूज की बात करूंगा, या फिर आप उल्टा लिख दो. तो इफ यू
नो, ये पता हूँ, दिस थिंग्स यू शुड नो नाउ कि जब दो डिस्क को कंबाइन करते हो और सिंगल डिस्क बनाते हो तो इनिशियल एनर्जी ज्यादा होता है। याद है क्या सरफेस टेंशन का केस? इफ यू हैव मोर नंबर ऑफ ड्रॉप्स, initial energy is more and when you combine final energy is less। यहाँ पे भी सेम चीज एप्लीकेबल है, तो उल्टा करोगे तो ज्यादा बेटर है। तो ये आपका नेगेटिव चीजों का सब झंझट हट जाएगा यहाँ से, so you don't have to worry about mods and other things। तो सिर्फ चेंज इतना ही आने वाला है यहाँ पे, you will have to put a 2 here, a 2 here, ऐसा। और यहाँ का जो है मॉड हटा देंगे, we don't need mod। ये 4 को उठा के यहाँ प्लेस करना है, 2 को यहाँ रखना है, सिर्फ मैं इनिशियल में से फाइनल माइनस कर रहा हूँ, दैट्स ऑल आई एम डूइंग, दैट्स इट। तो मैंने बस इसको ऐसा किया है, दैट्स इट। ओके, तो कैलकुलेशंस आई सजेस्ट यू टू डू दैट, कैलकुलेशन खुद करो, बट अल्टीमेटली यू विल हैव 1/4 ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 होल। इजीली आता है ये, कॉन्सेप्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन कैलकुलेशन हियर। तो क्या किया हमने, कैसे करोगे? अप्लाई conservation of angular momentum to find out final angular speed of the combined system। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं? पहले का प्लस दूसरे का, हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर। फाइनल केस में क्या आएगा? हाफ आई टोटल ओमेगा फाइनल स्क्वायर, आई टोटल इज 2i, ओमेगा फाइनल यू ऑलरेडी हैव, वो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2। सॉल्व करो, you will have your answer। Next question, a solid sphere of mass m, a solid sphere of mass m and radius r is rotating about its diameter। solid sphere of mass m and radius r is rotating about its diameter। The moment you hear this, I is 2/5 mr square। A solid cylinder, you should know how does a solid cylinder look like। So there is a solid cylinder of the same mass and the same radius। So you have solid cylinder of same mass and same radius। If solid cylinder, this is cylinder basically। तो cylinder का सिर्फ क्रॉस सेक्शन मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। So I'm just showing a cross section of cylinder over here। So you have a solid cylinder, something like that। Okay, it is solid, अंदर filled है। So I'm just showing the cross section। Okay, so it is rotating about its geometrical axis, है ना? It is also rotating about its geometrical axis। Solid cylinder is rotating with angular speed twice that of sphere। मतलब sphere का angular speed ओमेगा s है, तो सिलेंडर का 2 times of ओमेगा s है। Correct? The ratio of their kinetic energies of rotation is, so kinetic energy is half I omega square। So energy of sphere to that of energy of solid cylinder is I sphere omega s sphere upon I cylinder omega cylinder का square। Sphere 2/5 mr square, सिलेंडर 1/2, क्योंकि सिलेंडर और डिस्क सेम होता है, एंड ओमेगा एस, और ये है 2 times ऑफ ओमेगा एस का स्क्वायर। कैंसल कैंसल, ये 2 ऊपर जाएगा तो 4/5, ये ओमेगा एस स्क्वायर अपॉन 4 ओमेगा एस स्क्वायर, 4 भी कैंसल, तो 1:5, 1:5, ऑप्शन नंबर बी। सिलेंडर कौन सा? सॉलिड इज लाइक अ डिस्क, hollow cylinder is like a ring,
about its axis. What is axis? This line. Okay, ये जो center से pass हो रही है. Next question. From a disk of radius r and mass m, a circular hole of diameter capital R, whose rim passes through the center, all right, is cut. What is the moment of inertia of remaining part of the disk about a perpendicular axis passing through center? Good question. ऐसा है, हमारे पास you have a disk with radius r. So you have a disk with radius r, mass m. इसमें से हमने एक सर्कुलर होल कट कर लिया. अब सर्कुलर होल, you are cutting a circular hole from here, something like this, more or less. Okay, so थोड़ा सा बड़ा. गुड, समझ लेना आप. ओके, कैसे कट किया? whose rim मतलब बाउंड्री, whose rim passes through center, है ना. तो ये जो मैंने डिस्क इसमें से निकाला है, वो उसका जो रिम है वो सेंटर से पास हो रहा है. मतलब इट इज पासिंग थ्रू दिस सेंट्रल पॉइंट, लेट अस से C या O, जो भी बोलना हो, डजंट मैटर व्हाट यू वांट टू कॉल इट, लेट्स कॉल इट एज O. और जो हमने डिस्क यहाँ से काट लिया है, इसका डायामीटर R है. तो द रेडियस ऑफ द बिग डिस्क इज R, and at the same time the diameter of this small disk, small circular hole which is cut is also R. ये इसका डायामीटर है, मतलब इसका रेडियस हो गया R/2, राइट. तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्क? तो ये जो रिमेनिंग पार्ट बच गया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन. तो व्हाट यू कैन डू इज, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या करना, मान लेना assume इनिशियली हमने कुछ नहीं काटा, we are not cutting anything. So initial case, this is the initial case. Center is O, axis is perpendicular, so it is coming out of the plane of string, right? तो इस केस में initial moment of inertia half mr square, correct? फर्स्ट ऑफ ऑल, अब जो डिस्क आपने यहां से बाहर निकाल लिया है, द डिस्क दैट यू हैव टेकन आउट फ्रॉम हियर, लेट मी रीड्रॉ दैट डिस्क. मान लो ये डिस्क है, ओके, राइट. हमको पहले इस डिस्क का मास कितना है वो निकालना. वैसे मैं बताता हूं कैसे फाइंड करते हैं, बट बाय रूल, अगर आपके पास एक डिस्क है जिसका रेडियस r है, उसमें से आप एक r डायमीटर का डिस्क बाहर निकाल रहे हो, काट रहे हो, तो दैट पोर्शन विच इज कट, उसका मास m/4 होता है, राइट. कैसे निकालते हैं बता देता हूँ. पहले आप इसका मास डेंसिटी निकाल दो, सिग्मा, मास पर यूनिट एरिया, इसका बड़े डिस्क का मास पर यूनिट एरिया ऑफ दिस डिस्क m/πr², राइट. गुड, ये आपने फाइंड कर लिया. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मास पर यूनिट एरिया? हाउ मच इज मास देयर इन यूनिट एरिया, करेक्ट. गुड. तो ऐसा है. अब
how do you find out mass? Sigma is mass per unit area, right? So mass is sigma into area. Clear? What is sigma? Equation 1 से m upon pi r square. एरिया किसका एरिया? जो डिस्क आपने काटा है उसका एरिया पाई r बाय 2 का स्क्वायर, करेक्ट? तो पाई पाई गया, r स्क्वायर भी जाएगा, नीचे 2 है उसका स्क्वायर है, तो m डैश इज m बाय 4. So I don't want you to keep deriving such things. Here onwards, as a thumb rule, हमारे पास डिस्क है जिसका रेडियस r है, उसमें से हमने एक छोटा डिस्क जिसका डायामीटर r है वो कट कर लिया, तो उस डिस्क का मास होगा m बाई 4. इंपॉर्टेंट. अब जब हम सिर्फ इस डिस्क की बात कर रहे हैं, जो डिस्क हमने इसमें से काट के रखा है उसकी बात कर रहे हैं, राइट? यू ऑलरेडी नो कि हमने इसको ऐसा कट किया था कि इसके रिम पे सेंटर है O, ये सेंटर है ना O, और ये सेंटर O डैश है छोटी डिस्क का. ऐसा बोला है क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन शिफ्ट हुआ? नहीं. मतलब ये जो डिस्क आपने काटा है ये भी तो काटने से पहले रोटेट हो रहा था about tangent perpendicular to the plane. Imagination will take you to places where you cannot go. एक बड़ा डिस्क है उसके सेंटर से एक्सिस जा रहा था, alright? So the disc was rotating about center and perpendicular to the plane, right? So it was something like, I don't have any circular thing here, so pardon me. All right, so thank you. This is the disc that you have taken out. इसको निकालने से पहले बड़ा डिस्क था, उसका एक्सिस कैसा था? अब ये डिस्क निकाल लिया, ये किसके अबाउट रोटेट होगा? अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन. वेरी गुड. तो ये जो छोटा डिस्क आपने निकाला है जिसका मास m/4 है, रेडियस r/4 है, इट इज रोटेटिंग अबाउट टेंजेंट perpendicular to the plane of the disc. So I want to know what is moment of inertia I0 in this case. I0 dash, क्योंकि हमको सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का पता होता है, mr²/2 plus mh², where h is this distance between two parallel axes. Parallel axis theorem. How do you find out moment of inertia about tangent? You say कि हमको पता है about center of mass mr²/2 है, प्लस mh² कर देंगे, मतलब दोनों एक्सिस पैरेलल है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे, करेक्ट? राइट. लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे m डैश लिखा जाएगा. क्यों? किसकी बात कर रहे हैं हम? छोटा डिस्क. तो I0, that is for disk, small disk, I0 dash. I0 dash is axis passing through center of mass perpendicular to the plane, which is by definition m dash r dash square by 2 plus m dash h. What is h? H is distance between two axes, which is r dash, क्योंकि यही तो डिस्टेंस है ना, r dash, that is h. क्लियर? तो ये आपका आ जाएगा 1/2. m dash is m/4, r dash is r/2 का स्क्वायर, r² by 4 plus m dash is m/4
r dash is again r by 2 का स्क्वायर by 4, करेक्ट? इसको ऐड करो, simple. This is simple because that's why I keep on writing such things so that you understand how to do this kind of simple calculations. You can take out m dash r dash per common, half plus 1 is 3 by 2. जरूरत ही नहीं थी, आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन इज 3 by 2, तो वो पता होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट पता होना चाहिए. 3 by 2 m dash r dash square, 3 by 2 m dash is m by 4, r dash is r by 2 का स्क्वायर by 4. तो ये आ जाएगा आपका 16 to the 32. तो 3 by 32 m r square, ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉलर डिस्क, राइट? तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया is moment of inertia of remaining part काटने के बाद प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर होल, जो सर्कुलर होल आपने काटा था उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो I remaining is equal to I total minus I circular hole, बट ये है I circular hole और I total is I initial, ये हाफ mr स्क्वायर, हाफ mr स्क्वायर माइनस 3 by 32 mr स्क्वायर. तो अभी इसको करो सॉल्व, mr स्क्वायर कॉमन निकाल लो, 1 by 2 minus 3 by 32, 32 minus 6 26 है ना, ये आ जाएगा आपका 32 minus 6 26 by 2 into 32, 1 are 13, yes, that is 13 mr square by 32. ऐसा है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन में गुड. मैं वापस समझाऊंगा पूरा क्वेश्चन. So even though if it takes time, doesn't matter, we have to go through this question again. सबसे पहले the most important task is to understand the question itself. जब तक क्वेश्चन ही नहीं समझेगा तो कुछ नहीं कर सकते आप. आपके पास एक डिस्क है जिसका रेडियस r है, इसका मास m है, ये रोटेट हो रहा है अबाउट अ पॉइंट पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. तो इसका टोटल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 2 होता है, ये तो पता होना ही चाहिए, राइट? एक्सपेक्टेड इज दैट यू नो. अब इसमें से एक छोटा सा डिस्क निकाल लिया जिसका रेडियस है, जिसका डायमीटर है r. तो ये जो डिस्क मैंने निकाला है इसका डायमीटर है r, दैट आई एम कटिंग इट आउट. थिंक अदर वे राउंड. ऐसा सोचो जो मैंने I टोटल लिखा है, दिस I टोटल इज नथिंग बट ये जो रिमेनिंग पार्ट है, द वन इन द ब्लू, राइट? तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज moment of inertia of remaining part plus the circular hole that you are cutting out, right? So moment of inertia of remaining part is total moment of inertia minus the circular hole. तो अगर हमको सर्कुलर होल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया. उसका कैसे निकालेंगे, पहले तो ये समझ लो कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो हमने सर्कुलर होल काटा है, ये इसका जो रिम है वो सेंटर से पास होता है, ओ से पास होता है. मतलब जो सर्कुलर होल आप कट कर रहे हो वो सर्कुलर होल अबाउट टेंजेंट रोटेट होगा, अबाउट टेंजेंट. तो I total is mr square by 2, definitely mr square by 2 minus circular hole is 3 by 2 m dash r dash square. क्यों? क्योंकि सर्कुलर होल जो था इट वाज रोटेटिंग अबाउट टेंजेंट, और अबाउट टेंजेंट फॉर अ डिस्क इज 3 by 2
मास इंटू रेडियस स्क्वायर, लेकिन m डैश क्योंकि मास ऑफ द सर्कुलर होल, r डैश क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कुलर होल. And just now I told you कि here onwards you need to remember that mass of the disk of the circular hole that you are cutting out, अगर उसका diameter equal to radius of original disk है तो it is m by 4 और ये तो r by 2 है उसका स्क्वायर. अब यहीं पे आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया बिकॉज यू आर टेकिंग आउट mr square by 2 कॉमन. 1 minus 1 3 by 16, 3 by 16, 16 minus 3 13, 13 by 16 और नीचे 2 था mr square by 13 mr square by. कितना सिंपल क्वेश्चन है. फर्स्ट टाइम इट फील्स लिटिल टफ क्योंकि फर्स्ट टाइम यू हैव टू इमेजिन कि क्या हो रहा है 16 के साथ. गुड. तो एज अ होमवर्क, एज एन होम असाइनमेंट, अगर मैं इस डिस्क को ऐसा निकालता सेंटर से, तो फिर उस केस में रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता. ये आपका असाइनमेंट. असाइनमेंट का मतलब होता है असाइनमेंट. ओके. क्वेश्चन नंबर 6. 3 आइडेंटिकल स्फेरिकल शेल्स. स्फेरिकल शेल है, सॉलिड स्फीयर नहीं है, हॉलो स्फीयर है, डिस्क नहीं है, रिंग नहीं है, हॉलो स्फीयर है. ओके. Each of mass m, radius r are placed as shown in figure. Consider an axis x dash which is touching two shells and passing through diameter of the third shell. Okay. Moment of inertia of the system. This is a joke. Joke if you understand jokes in physics. If you don't understand, then no, it's not a joke for you. So basically क्या करोगे इसको? Just extend this. Let's keep it like थोड़ा सा alignment. All right. Then the third goes something like this. ऐसा है. Now axis is going like this. एक काम करते हैं, नामकरण कर देते हैं 1 2 and 3 क्योंकि पहला वाला अबाउट डायमीटर रोटेट हो रहा है. पहला हॉलो स्फीयर. तो पहले का तो केस इजी है 2 by 3 mr square, राइट. क्यों? क्योंकि हमको पता है, दिस इज वेल नोन, 2 by 5 is for solid. Second and third tangent, parallel axis theorem, क्योंकि हमको अबाउट दिस एक्सिस तो पता होगा ना. You already know ना about diameter, don't you? You know this. You know what is this. इसको मैं बोल देता हूँ just for the sake of convenience, मैं बोलता हूँ IC and this is IT for example, है ना. IC plus m distance square r square. Parallel axis theorem. IC is 2 by 3 mr square. Don't write down capitals. All right. तो ऐसा है. प्लस क्योंकि ये भी आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप ऐसे बता दोगे, पर नहीं बताया. 5 by 3 आपने बताया था, बट यू हैव टू बी क्विक ऑन दिस. हॉलो स्फीयर अबाउट टेंजेंट, सॉलिड स्फीयर अबाउट टेंजेंट 7 by 5. गुड. आ गया. तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज I1 plus I2 plus I3. इसमें से ऑब्वियसली I2 और I3 तो इक्वल है, राइट. और I1 है आपके पास 2 by 3 mr square plus 2 times of 5 by 3 mr square. Solve this. 2 by 3 दोनों में से कॉमन निकल रहा है, वो कॉमन निकाल लो. 2 by 3
mr स्क्वायर कॉमन है, 1 प्लस 5 है ना, 6 इंटू 2/3 mr स्क्वायर, ऊपर से नीचे 3 2, टोटल 4 mr स्क्वायर, 4 mr स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी, राइट। 3 में से 2 अबाउट टेंजेंट और 1 अबाउट डायमीटर। A rod PQ of mass m, length L is hinged. Hinged, hinged पता है आपको, दरवाजे पे जो बजागरे होते हैं, तो hinged, hinged मतलब वहां पे उसको, you see it is fixed there but it is allowed to rotate. The rod is kept horizontal by a massless string tied to point Q. And we have a rod, we have a point P about which it is hinged, मतलब it is allowed to rotate if given a chance, and there is another point Q. यहाँ पे एक मासलेस स्ट्रिंग के साथ इसको बांध के रखा है ऊपर रिजिड सपोर्ट के थ्रू, this is like this. Okay, when the string is cut, जब स्ट्रिंग को काटोगे, if you cut this string, the rod will start rotating. It will start rotating क्योंकि P point पे hinged है वो. Okay, it is just like this. Okay, so what is initial angular acceleration of the rod? तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? जैसे ही आपने, the moment you cut the string, this rod will start rotating. Okay, it will start rotating, that is okay. मतलब rotation मतलब torque मतलब I alpha, torque is I alpha. Clear? What is moment of inertia of rod about its one end? ml square by 3. Good. So this is ml square by 3 alpha because it is rotating about one end perpendicular to its length. But if you remember from 11th standard, torque is RF. RF होता है ना torque? अभी आपने बताया था R क्रॉस F, तो RF होता है RF, where F is the force responsible for rotation. अब कोई भी रॉड हॉरिजॉन्टल पोजीशन में था, दूसरा एंड फिक्स था, स्ट्रिंग काट दिया, इट इज गोइंग डाउन. व्हाई इट इज रोटेटिंग? कौन सा फोर्स? ग्रेविटी. वेरी गुड. ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करने के लिए आप क्या लिखते हो? mg. लेकिन mg कौन से पॉइंट पे एक्ट हो रहा है यहाँ पे? क्यों? हाँ नहीं, मिडल सेंटर ऑफ मास पे. ऐसा क्यों? Why do you do this? What is moment of force? What is torque? Torque is force into distance from the axis of rotation. ये R जो होता है ना, ये होता है फोर्स जिस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है वहां से एक्सिस का डिस्टेंस. अब क्वेश्चन ये आ गया, चलो फोर्स तो हम मान लेते हैं. यू कैन से कि फोर्स इज mg, परफेक्टली फाइन, बिकॉज दैट इज नॉट रॉन्ग. कौन से पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करेंगे? क्या, कहाँ से मेजर करूं? मैं यहाँ से मेजर करता हूँ, चलेगा क्या? नहीं. यहाँ से नहीं, पूरा यहाँ से मैं बोलूंगा ना इस पे ही ग्रेविटी एक्ट हो रहा है, नहीं चलता है. तो इन सच केसेस सेंटर ऑफ मास, क्योंकि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आप अप्लाई ही सिर्फ पॉइंट पे कर सकते हो, पार्टिकल पे. इसलिए तो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ. बिकॉज व्हेन यू से a body is accelerating and the fourth equation is m into a, किसका एक्सेलरेशन? बॉडी का नहीं. एक्सेलरेशन कभी भी पॉइंट का होता है, इसलिए आप बोलते हो
Center of mass is a point where whole mass of the body is supposed to be concentrated so that you can apply Newton's law of motion. ओके, तो सेंटर ऑफ मास का दोनों एंड से, इस एंड से या उस एंड से कितना डिस्टेंस होगा? L/2. वेरी गुड, तो ये आ गया L/2. इक्वेशन 1 भी टॉर्क है, इक्वेशन 2 भी टॉर्क है, तो Lmg/2 इक्वल टू mL²/3 अल्फा. L L M M, सो अल्फा चाहिए हमको, यस, तो अल्फा चाहिए तो 3g/2l इज अल्फा, है क्या? 3g/2l, ऑप्शन नंबर सी, राइट. व्हाट वाज सो डिफिकल्ट? नथिंग. एंड जस्ट टू टेल यू, ये क्वेश्चन जेई मेंस का है, ये क्वेश्चन भी जेई मेंस का है, बट दे कैन आस्क यू फॉर नीट आल्सो. ये क्वेश्चन नीट का था. Simple questions are there. This is joke. Two person of masses 55 and 65 kg respectively are at opposite ends of a boat. So there's a boat. एक end पे 55 kg है, दूसरे end पे 65 kg है. The length of boat is 3 meter. The length of boat is 3 meter. Weighs 100 kg. Boat का खुद का weight 100 kg है. 55 kg man walks up to 65 kg man and sits with him. If the boat is in still water, the center of mass of the system shifts by 0. Why 0? Why 0? Why 0? Yeah, so the system is still the same. There is no external force acting on the system. Center of mass does not shift. ठीक है. All right, so ABC is an equilateral triangle with O as its center. F1 bar, F2 bar, F3 bar represents three forces acting along sides AB, BC, AC respectively. If the torque about O is 0, good, then the magnitude of force F3 is. Okay. So you have equilateral triangle. Okay. So you have equilateral triangle. समझ लेना, अभी नहीं दिख रहा होगा तो equilateral. You just assume this is equilateral triangle. A, B, C. This is center. Okay. Now center of equilateral triangle is anyways at equal distance from all the sides. X, X and X. तीनों sides से उसका distance same होगा. This is X, this is X, this is also X. So you have a force F1 up acting like this, F1 bar of course. एक है आपके पास F2 bar which is over here, F2 bar. This is F2 bar. Then you have third force F3 bar. F3 bar यहाँ पे, right? अगर टॉर्क 0 है, if the torque is 0, how do you define torque? Force into distance, है ना? तो टोटल टॉर्क 0 मतलब F1x plus F2x plus F3x equal to 0 because total torque is 0, right? So this is important for you to understand. All right. So obviously आपको मिल जाएगा F3 equal to minus F1 plus F2. ओके, अब ऐसा तो ऑप्शन है नहीं, फिर क्या करेंगे? because yes, because you are talking about here, you are not taking magnitude of forces. I don't want to do it this way anyways.
लेकिन ऐसा है, देयर इज अनदर वे आउट, तो मैं बताता हूँ तीसरा। तो सेकंड मेथड इज सिंपल, यू हैव F2 हियर, you have F1 here, you have F3 over here, है ना, ऐसा कुछ है। F3, F2, F1, सिर्फ मैंने फोर्सेस को F1 फोर्स को यहां दिखाया है, that's it. Okay, good. Do you see all the forces are starting from a single point? Do you remember something basics about vectors? Starting from single point, देखो मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। Do you remember you can move forces, vectors anywhere you want? Remember? What do you understand by this? All the forces acting at a single point, collinear. Sorry, क्या बोलते हैं उसको? At a single point. नहीं, equilibrium तो ठीक, concurrent. These are concurrent forces. So concurrent forces leads to equilibrium situation, right? हाँ, तो total forces का addition 0 होगा. Concurrent forces equilibrium, addition is 0. So F3 bar equal to F1 bar with a negative sign plus F2 bar. Take mod, so F3 is equal to F1 plus F2. Option number C. Right? अब हम एक रूल बना लेते हैं, ट्रिक। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों साइड्स पे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, और अगर टोटल टॉर्क अबाउट सेंटर 0 है, तो F3 इक्वल टू F1 प्लस हो गया, राइट? गुड। A circular platform is mounted on a frictionless vertical axle. Its radius R is 2 meter and its moment of inertia out of axle is 200 kilogram meter square. It is initially at rest. A 50 kg man stands on the edge of the platform and begins to walk along the edge at a speed of 1 meter per second relative to the ground. Time taken by the man to complete one revolution is. Alright, तो एक बार और ये क्वेश्चन देख लो। हमारे पास एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म है जिसको मैं फ्रिक्शनलेस वर्टिकल एक्सेल पे माउंट कर दिया, तो हमारे पास एक ये वर्टिकल एक्सेल था, इसके ऊपर हमने we have mounted a platform, circular platform like this, right? Correct? Okay, इसका जो रेडियस है that is 2 meter, roughly 6 feet. Okay, moment of inertia about axle, out of axle मतलब perpendicular to the plane of axle, this is 200 kg meter square. इनिशियली ये रेस्ट पे है, मतलब ओमेगा इनिशियल is 0, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी is 0, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम is 0. तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0, तो फाइनल 0, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, राइट? अब बोलोगे ऐसा कैसा हो गया? अभी देखो कैसा होगा, आगे सोचो। यू हैव अ मैन ऑफ 50 kg who is right at the edge and he starts walking along the edge. Okay, अगर वो काउंटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो प्लेटफॉर्म क्लॉकवाइज रोटेट होगा, जो एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करना है, क्योंकि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0 था, तो फाइनल 0 ही होगा। तो इसके लिए उस प्लेटफॉर्म पे जब मैन चलेगा काउंटर क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज रोटेट होगा प्लेटफॉर्म, करेक्ट?
तो सबसे पहले आपको इतना पता होना चाहिए, इफ यू नो दिस, आगे हम बात करेंगे। अब ऐसा है, फाइनल एंगुलर मोमेंटम तो जीरो होगा ही। ओके, सो बाय द वे व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम फाइनल? व्हाट इज एलएफ बाय द वे? फाइनल एंगुलर मोमेंटम इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ मैन प्लस द प्लेटफॉर्म, मैंने माइनस क्यों लिखा? अपोजिट डायरेक्शन, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ मैन इक्वल टू प्लेटफॉर्म, मैग्नीट्यूड वाइज डायरेक्शन वाइज अपोजिट है। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन? MVR, MVR, R cross A, R cross P. What is R cross P? R cross MV. तो ये आता है MR cross V, but R and tangential velocity are at 90. तो ये आता है आपका MRV sin 90, sin 90 is 1. तो ये आपको मिलेगा मैन का मास, मैन का वेलोसिटी into radius, that radius, this radius which is 2 meter. What is angular momentum of platform? I omega. क्या फाइंड करना है? टाइम टेकन। अभी टाइम टेकन हमको फाइंड करना है टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। ओके, तो हमको मास पता है क्या मैन का? 50। v पता है क्या हमको मैन का? 1। r पता है हमको 2 मीटर। I पता है। तो हम डायरेक्टली यहीं से बोलेंगे ओमेगा इज 2 पाई बाय टी। तो t इज इक्वल टू 2 पाई I बाय MVR। सो आई विल सब्स्टिट्यूट I की जगह पे 200, मास ऑफ मैन है ये, प्लेटफॉर्म नहीं, 50, v is 1 and r is 2, नीचे 100 ऊपर 200, मतलब 2 into 2 pi is 4 pi सेकेंड। अभी नहीं आया आंसर, ऐसा नहीं है ऑप्शन में, क्यों नहीं है? वेयर हैव वी वेंट रॉन्ग? सोचो, because it is pretty easy to say this, but कहाँ पे गलती हुई? तो सबसे पहले you have to pay attention that this velocity is relative to ground and not relative to the platform. तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ओमेगा फाइंड कर लूंगा। I will find what is omega itself, right? So I will have omega as MVR by I, M 50, V 1, R 2, I 200, मतलब ये आएगा हाफ। This is omega of platform. This is omega of platform with respect to ground. Okay, so V कैसे निकालोगे? This is, you know what is relation of omega and V? V equal to R omega, so V by R. तो आपको velocity of platform with respect to ground is R into this. What is R value? 2 by 2, that is equal to 1, right? मिल गया? Good. Now you can talk about time period. तो आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो। How do you find out time period now? देखो, how do you find out time period? What is time period? Distance upon velocity. Correct? Distance is 2 by r. Velocity vp 1. ऊपर 1 नीचे 1 cancel. So 2 pi seconds. That is something which is assignment for you here. क्योंकि हो गया, अभी कुछ नहीं है यहाँ पे। T is distance, distance is 2 pi r upon velocity. Velocity v, T लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो T is 2 pi r, r कितना है आपके पास? 1 है,
1 है कि 2 है? 2 है। फिर वीपी, ओ ये भी वापस से प्रॉब्लम आ गया 4 पाई। समवेयर वी आर गोइंग रॉन्ग। कहाँ गलती हो रही है? गलती कहाँ हो रही है? जब तक ये फाइंड नहीं करोगे, पता तो लग गया आपको, लेकिन कैसे करेंगे वो देखो। रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ओमेगा आर इज ओमेगा प्लस v by something something. What is v by something something here? रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट नहीं पता। velocity of a with respect to b is velocity of a with respect to ground minus b with respect to ground. So velocity of a with respect to ground is velocity of a with respect to b plus velocity of b with respect to ground. बराबर है, तो यहाँ पे अप्लाई करो, प्लस होगा प्लस। आई मीन दिस इज वेरी सिंपल। ये प्लस कहाँ से आया ये समझ लो अभी, प्लस कहाँ से। तो here onwards you have to solve, because सिर्फ यही एक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, because once you know this formula is right in front of you। तो ये 2 पाई आएगा। मैं आपको बेसिक्स बता देता हूँ वापस से। एक एक्सेल है, एक्सेल के ऊपर एक प्लेटफॉर्म फिट किया है। एक्सेल और प्लेटफॉर्म में फ्रिक्शन नहीं है। उस प्लेटफॉर्म का आपको रेडियस 2 मीटर दिया है, उसके एज पे एक मैन है। जब मैन अगर क्लॉकवाइज जाएगा तो प्लेटफॉर्म एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, मैन अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो प्लेटफॉर्म क्लॉकवाइज जाएगा। यहाँ तक कोई इशू नहीं। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0 था क्योंकि नथिंग वाज रोटेटिंग। एज सून एज मैन स्टार्ट्स वॉकिंग, प्लेटफॉर्म स्टार्ट रोटेटिंग, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम भी 0 हो। मतलब एंगुलर मोमेंटम ऑफ मैन इज इक्वल टू रोटेटिंग प्लेटफॉर्म मॉड्यूलस वाइज, एब्सोल्यूट, क्योंकि डायरेक्शन वाइज अपोजिट है। तो एम वी आर इक्वल टू आई ओमेगा। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि आपको जब टाइम पीरियड निकालना है तो यू आर गेटिंग लिटिल बिट कंफ्यूज्ड। हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, बट देन आई वाज चेकिंग। मैंने 2 बार बोला टाइम पीरियड, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। You told me right thing, but you were not looking at what we are substituting. So t equal to 2 pi relative velocity by r. This is 2 pi omega relative. ये क्या फाइंड किया तुमने प्लेटफॉर्म के लिए? क्या है ये? ओमेगा प्लेटफॉर्म के लिए क्या फाइंड किया? 1 किया ना? किया ना ये? तो इंस्टेड ऑफ डूइंग सो लेंथी मेथड आप बोल देते 2 पाई बाय ओमेगा प्लेटफॉर्म। क्यों ओमेगा प्लेटफॉर्म? क्यों? मैन जब वॉक करेगा, जितना मैन का स्पीड होगा क्लॉकवाइज में उतना ही, तो 1 है ना, ये 1 आपने ही फाइंड किया ना 1। तो क्या आ गया? 2 पाई सेकेंड। क्लियर? थोड़ा सा ध्यान दो। 3 masses are placed on the x-axis, 300 gram at origin, 500 gram at 40, 400 at 70। तो origin पे आपके पास एक मास है। Let's put a mass over here. This is like 300। उसके बाद एक 500 और एक 400। So this is 400, this is 500 somewhere over here. Origin x equal to 0. Okay, this is 40 centimeter, this is 70 centimeter। मैं मान लेता हूँ ये x1 पे है, which is 0 of course, ये x2 पे है, ये x3 पे है। सेंटर ऑफ मास, what is x center of mass? m1 x1 yes plus m2 x2 plus m3 x3 upon plus m3, m1 plus m2 plus m3।
m1 x1 तो 0 आ जाएगा क्योंकि x1 0. दिस इज 40 सेंटीमीटर पे 500 इंटू 40 प्लस m3 कितना 400 कहाँ पे 70 पे. टोटल टोटल 300 500 और 400 1200 1200. ओके. अभी सिंप्लीफाई चीजों को करना है ना आपको, तो नीचे 2 0 और ऊपर दोनों टर्म में 2 2 0 है. तो 5 ऐसा करते हैं 5 इंटू 4 20 कर लो इसको 20 प्लस 28 इंटू 100 ओके अपॉन 1200 कैंसल कैंसल 48 बाई 12 है ना राइट. 4 एक जीरो एक्स्ट्रा है. यस जीरो अनदर जीरो क्योंकि यहाँ पे आपका 200 आएगा और ये 70 इंटू 4 280 आएगा 480 आएगा 40 सेंटीमीटर आएगा 40 सेंटीमीटर आएगा. हो गया खत्म डन. The moment of inertia of a thin uniform rod of mass m and length L about an axis passing through its midpoint and perpendicular to its length is I0. तो एक रॉड है, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर मतलब ये. So this is I0 according to the question. Okay, its moment of inertia about an axis passing through one of its end. Joke. Moment of inertia about one of its end. This distance you know. This is L by 2. तो H equal to L by 2. आपको O पॉइंट के अबाउट निकालना है. ओके नहीं इसको IO बोला तो ठीक है doesn't matter. I'll call this some point let us say A. तो आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एंड IA विल बी I0 प्लस mh स्क्वायर. तो I0 प्लस mh इज L. तो I0 प्लस ml स्क्वायर बाई 4. सिंपल सा ओरल क्वेश्चन था. A thin circular ring of mass m and radius r is rotating about its axis with constant angular velocity omega. You have a ring. So let me first draw a ring. Take a ring. Let me take a ring. Okay, so here we have a ring, something like this. Okay, so this is a ring that you have. Thin है, ये thick दिख रहा है, doesn't matter. I don't care for this anymore. So let's just remove this from here. Let's take a thin ring. हमारे पास thin ring है which is rotating about its axis. What do you mean by about its axis? Passing through center of mass, perpendicular to the plane of ring, with velocity omega. Two objects each of mass m are attached gently. So you are attaching two masses at two opposite ends of the diameter. एक यहाँ पे एक यहाँ पे m and m. Okay, the ring now rotates with what velocity? ऐसे questions में always apply conservation of angular momentum. Initial angular momentum equal to final angular momentum. Initial angular momentum is I omega initial. This is I final omega final. Initial moment of inertia is just mr square क्योंकि रिंग है उसका मास m है रेडियस r है r स्क्वायर ओमेगा इनिशियल तो ओमेगा बोला ही है. फाइनल के केस में यस फाइनल के केस में रिंग भी रोटेट हो रहा है. रिंग रोटेट हो रहा है प्लस जो दो मासेस है डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स पे वो भी रोटेट हो रहे हैं. व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ मास रोटेटिंग विथ रेडियस r mr स्क्वायर. तो ये आएगा 2 mr स्क्वायर. ये कंट्रीब्यूशन आया दो मासेस थे
ओमेगा फाइनल, राइट। तो ये आपके पास मिल गया आपको इन शॉर्ट m r स्क्वायर ओमेगा, ओके। यहाँ से r स्क्वायर कॉमन निकाल लेना, कैपिटल M प्लस 2m, ओमेगा फाइनल कैंसल कैंसल, तो ओमेगा फाइनल इक्वल टू m ओमेगा अपॉन m प्लस 2m। है क्या ऐसा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत सिंपल वे है ये सॉल्व करने का। इट इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो next question 14. If F bar is the force acting on a particle having position vector y and torque tau be the torque of this force about the origin, then force F है, पोजीशन वेक्टर उन्होंने r बार लिखना चाहिए था, गलती से y लिख दिया। एनीवेज टॉर्क टाउ है, तो इस केस में व्हाट इज द फॉलोइंग कंडीशन विच इज ट्रू? सिंपल है ये। विच इज द फॉलोइंग कंडीशन ट्रू? कौन सा होगा इसमें से? बी। गुड। हाउ कम? इफ यू रिमेंबर, r bar क्रॉस f बार इज टॉर्क। ये r बार है, r bar और f bar is always perpendicular. क्यों perpendicular? Why they are perpendicular by the way? Because हमेशा ये जो डायरेक्शन होता है, दिस इज टेंजेंशियल डायरेक्शन फॉर वेलोसिटी। सर्कुलर मोशन भूल के कैसे चलेगा? आई डोंट अंडरस्टैंड। इट्स सिंपल थिंग। सर्कुलर मोशन इज रोटेशनल मोशन ऑफ अ सिंगल पार्टिकल about some axis. Linear velocity is always tangent to, at any point is tangent, मतलब it is perpendicular to radius। जो डायरेक्शन वेलोसिटी का है वो डायरेक्शन एक्सेशन का है। V and A are in the same direction, uniform circular motion। जो डायरेक्शन A का है वो डायरेक्शन F का है, मतलब F और R परपेंडिकुलर है। तो what is the dot product of, देखो ऐसा है, यू सी V बार का डायरेक्शन मतलब A बार का डायरेक्शन मतलब F बार का डायरेक्शन, राइट। आई विल गिव यू अनदर वे। ऐसा है, ये है R बार, then you have here along tangent F bar, so you can say this is F bar, this is R bar। ये आपके पास R बार है, यहाँ पे ये F बार है, along tangent है। अभी along tangent दिखाना पड़ेगा मुझे। this is along tangent, क्योंकि ये along tangent था, something like this। इसको मैं शिफ्ट करके यहाँ पे लेके आ गया सेंटर पे, राइट। R bar cross F bar is torque। Did you not learn in 11th standard A bar cross B bar? ये जो वेक्टर होता है ये A बार को भी और B बार को भी परपेंडिकुलर होता है। वेरी गुड। इसका मतलब टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू बोथ F एंड R। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ R बार डॉट टाउ बार इज 0। क्यों? दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, राइट। और टॉर्क और फोर्स भी परपेंडिकुलर है,
तो ये भी 0. Right? So if F bar is a force acting on particle having position vector R bar, torque is tau bar of this force about origin, which means this particle is performing uniform circular motion, which means V is tangent, direction of V is same as A and that is same as F. So R bar and F bar both are perpendicular to each other, है ना? नहीं भी हुआ तो tangential तो पता क्या है. R bar cross F bar will go into a plane perpendicular to both R and F. मतलब torque is perpendicular to R and perpendicular to F. टॉर्क और R का डॉट प्रोडक्ट, टॉर्क और F का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा. ऑप्शन नंबर बी में. सिंपल. Four identical thin rods, each of mass m, length L, form a square frame. Moment of inertia of this frame about an axis through the center of the square perpendicular to its plane is. Okay, let's solve it. हमारे पास एक स्क्वायर फ्रेम है. Square frame, you have a square frame. So you have one side here, this is one side and ये आ गया आपका एक साइड. आपको पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर. सेंटर इज वेयर डायगोनल्स इंटरसेक्ट बाय द वे. लेंथ L. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट O. एक्सिस इज कमिंग आउट फ्रॉम द प्लेन ऑफ फोर्ड. मैं इसका एक अल्टरनेट व्यू, आई वांट यू टू हैव अ अल्टरनेट व्यू ऑफ दिस, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. You need to always have some alternate view of this. थोड़ा imagination में easy होता है. So you have this as a square frame. Axis is passing perpendicular to this frame through center. ऐसा पास हो रहा है. You have center more or less over here. स्क्वायर फ्रेम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब हर एक साइड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय 4. तो हम क्या करेंगे? डू यू नो? ऑफ कोर्स यू नो. डू यू नो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ? ml square by 12. तो आपको ऑलरेडी इस पॉइंट C के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC ml square by 12 पता होता है. पता है? Do you know this side length is L, क्योंकि स्क्वायर फ्रेम है ना? ये L है और C से O तक का डिस्टेंस से हाफ द लेंथ है क्योंकि स्क्वायर फ्रेम है. तो ये अगर आपके पास L है, ये L/2 है, तो which theorem I need to apply to find out I0? Parallel axis theorem. It tells me that I0 is IC plus mx square. IC is ml square by 12 and h is L by 2 का square. तो ml square by 12 plus ml square by 4, right? So ml square by 4 common, 1 by 3 plus 1, that is 4 by 3. 4 by 3. ये 4 by 3 और नीचे यहाँ पे 4, तो ये ml square by 3, राइट? करेक्ट. मैं ट्रिक बताऊंगा यहाँ पे क्योंकि यू हैव टू स्टार्ट डूइंग दिस नाउ. ये एक साइड का हो गया, राइट? बट स्क्वायर फ्रेम
has 4 sides. Therefore, total moment of inertia is 4 times of I0, 4 times of 1 by 3 ml square, that is 4 by 3 ml square. Correct? It is a joke question. Why? Do you remember what is moment of inertia of a rod about one end? ml square by. तो अभी ये सोचो, you have to be little attentive to the questions. यहां से रोटेट हो रहा है या यहां से रोटेट हो रहा है, दोनों केस में यू विल अप्लाई पैरेलल एक्सिस हियर. करेक्ट. अब ये डिस्टेंस l/2 है तो ये भी तो l/2 ही है. तो स्क्वायर फ्रेम का सेंटर का किसी भी एक रॉड से डिस्टेंस l/2. जब h l/2 आया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए ml²/12 प्लस ml²/4 क्यों करना है? नहीं समझा है. वेट. इमेजिनेशन. क्या था कि हमको अल्टीमेटली अगर I0 मिल जाता फॉर वन साइड तो आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे. I0 फाइंड करने के लिए आपने IC का यूज किया प्लस m इंटू h स्क्वायर किया. इजंट इट? ये किया. h कितना है? अगर एक्सिस में यहां से पास करता तो h कितना होता? l/2 होता. ये एक्सिस o डैश या o, ये दोनों c से जो एक्सिस पास हो रही है उसको पैरेलल है. तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग क्यों आएगा? सेम आएगा. तो फाइंड क्यों किया? यू हैव टू जस्ट रिमेंबर फॉर अ स्क्वायर, रेक्टेंगल के लिए अप्लाई मत करना. डोंट हैव टू डू दिस फॉर रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल में एक साइड शॉर्ट हो जाता है. तो उस केस में यू हैव टू डू, क्योंकि उस केस में अगर ये साइड a है तो h विल बी a/2. ओके, एंड दिस इज b साइड. तो दिस इज हाउ यू नीड टू रिमेंबर. सेंटर ऑफ स्क्वायर ऐसा बोला है तो उसका सेंटर ऑफ सामने वाला जो साइड है उसका डिस्टेंस है l/2. तो हो गया आपका आंसर. This is circular motion. A wheel has angular acceleration 3 radian per second square. Initial angular speed omega initial 2 radian per second. टाइम दिया है 2. कितना रोटेशन हुआ है? s इक्वल टू ut मतलब ओमेगा इनिशियल t प्लस 1/2 अल्फा t स्क्वायर. तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 2, ओमेगा इनिशियल 2, टाइम इज 2, हाफ अल्फा 3, 2 स्क्वायर. ये गया 4 प्लस 6 10 रेडियन. ऑप्शन नंबर ए. खत्म आंसर. Two bodies have their moment of inertia I and 2I respectively. Okay, about their axis of rotation. About their axis of rotation मतलब passing through center of mass होता है. If their kinetic energies of rotation are equal, kinetic energy of rotation is equal, angular velocity will be in the ratio half I1 omega 1 square equal to half I2 omega 2 square. half cancel. आपको रेशियो पूछा है एंगुलर वेलोसिटी का. ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 का स्क्वायर इज I2 बाय I1. ऑफ कोर्स मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, ये इसको कैंसिल करना था, हो गया. ऑलराइट, एनीवे डजंट मैटर रियली. सो ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 इज under root of I2 by I1. I2 is 2, I1 is I, so under root of 2 is 2, 1. Option number C. A wheel having moment of inertia 2 kg meter square about vertical axis
rotates at a rate of 60 rpm, मतलब n equal to 60 rpm, revolutions per minute, 60 by 60 rps हो जाएगा. एक revolution एक second में perform करेगा. The torque which can stop the wheel's rotation in 1 minute is torque which can stop. What is torque? Torque is I alpha. Right. What is alpha? Final minus initial upon time. करेक्ट. उल्टा करते हैं इसको, मतलब सिर्फ नेगेटिव ही आएगा. जो बॉडी रोटेट हो रहा है उसको स्टॉप करना है तो टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में देना पड़ेगा. तो इट्स ओके. व्हाट इज I is 2, ओमेगा फाइनल is 0, ओमेगा इनिशियल is 2 pi times of n initial upon time. Time is 1 minute, that is 60 seconds. So 1s are 30s are minus 2 pi n initial, तो 1 ही आया upon 30. करेक्ट. तो pi by 15 with a negative sign, तो मैं नेगेटिव छोड़ दूंगा तो प्लस pi by 15 न्यूटन मीटर. A solid sphere of radius r is placed on smooth horizontal surface. Smooth मतलब no friction. Horizontal surface, horizontal surface. Smooth surface and no friction. So there is this solid sphere of radius r which is placed over here. A horizontal force F is applied at height h from the lowest point. The lowest point से कहीं पे तो किसी एक height पे force F apply कर दिया. मान लो यहाँ apply. So we are applying over here. For the maximum acceleration of center of mass, which is correct. For maximum acceleration of center of mass, which is correct. Height h equal to r होना चाहिए. h equal to 2r, मतलब यहाँ पे अप्लाई कर दिया ऊपर के पॉइंट पे. h equal to 0 मतलब यहाँ पे मैक्सिमम एक्सेलेरेशन के लिए नन, फ्रिक्शन नहीं है. जब फ्रिक्शन नहीं है तो रोलिंग नहीं है, सिर्फ स्कीडिंग है. जब स्कीडिंग है तो कहीं भी अप्लाई करो, डजंट मैटर. ओके, राइट, गुड. Question number 28. For a hollow cylinder and a solid cylinder, rolling without slipping. Of course, rolling तब होगा जब slipping नहीं होगा, मतलब वहाँ पे friction होना चाहिए. On an inclined plane, then which of this reaches earlier? अगर आपको याद है, याद नहीं है तो अभी याद होना चाहिए. हमने time of descent का एक इक्वेशन बनाया था. 1 sin theta under root of something something which I don't care, 1 plus k square by r square. This is what I care. Those who have no idea, I'll tell you how to derive this equation. Doesn't matter. So अगर आपको पता नहीं तो inclined plane पे, inclined plane है, yes. Inclined plane पे, if you have an object starting from here, irrespective of what type of object it is, it can be a disc, it can be a cylinder, hollow sphere, ring, solid cylinder, whatever it is. So by the way, यहाँ पे velocity find करनी है. यहाँ से start किया था. रोलिंग मोशन है. रोलिंग मोशन में ए पॉइंट पे ओनली एनर्जी इज पोटेंशियल और ये हाइट है h, राइट. तो ओनली एनर्जी एट ए इज पोटेंशियल एनर्जी. जब ए से बी पे आएगा तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज बी पॉइंट पे पोटेंशियल नहीं है, राइट. नाउ दिस इज mgh. दिस इज हाफ mv स्क्वायर. इनकरेक्ट. रोलिंग मोशन में ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन होता है. 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर टर्म आता है. कैसे आता है? आप लिखते हो टोटल एनर्जी इज एनर्जी
of translation plus rotation, half mv square plus half I omega square. Half mv square plus half I is mk square by definition, omega square. Omega is v by r, तो v square by r square. आप यहाँ से हाफ mv square कॉमन निकाल लोगे तो ब्रैकेट में बचने वाला है 1 प्लस k square by r square. Cancel, cancel. So v square equal to 2gh upon 1 plus k square by r square. So v equal to under root of 2gh 1 plus k square by r square. Obviously अगर सिर्फ ट्रांसलेशन होता, स्लिपिंग होता, फ्रिक्शन नहीं होता, तो k स्क्वायर बाय r स्क्वायर 0 होता, मतलब अंडर रूट ऑफ 2gh. तो आपको v स्क्वायर इक्वल टू प्लस 2a ऐसे पता है, ऐसा v फाइंड करते हो. हमको टाइम फाइंड करना है, बट मैं बता रहा हूँ कि कैसे कर सकते हो. एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हो? हाउ डू यू फाइंड आउट एक्सेलरेशन? बाय द वे, v इज इक्वल टू u प्लस at है ना, पर t कहाँ पता है? नहीं पता है. तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. पर a कहाँ पता है? a तो फाइंड करना है, फाइंड करना है ना. गुड. वेट अ मिनट, this is s, this is theta. ओके, तो v स्क्वायर है क्या? 2gh 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, u इज 0, 2as. कैंसल, कैंसल. फ्रॉम फिगर sin theta is opposite side upon hypotenuse, तो s इक्वल टू h बाय sin theta. तो s इक्वल टू h बाय sin theta. h गया, तो a इक्वल टू g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर ऐसा आता है. अब फाइंड करना है टाइम ऑफ डिसेंट. कितना टाइम लगा नीचे आने में? v इक्वल टू 0 प्लस at, क्योंकि 0 था, तो t कितना? v बाई a. v कितना? अंडर रूट ऑफ 2gh 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर. a कितना? g साइन थीटा बाय 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर. इसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट. नीचे आने में कितना टाइम लगा? सो दिस इज 1 अपॉन g साइन थीटा अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर. ये नीचे का 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, ऊपर उसको स्क्वायर रूट में लेके जाओगे तो स्क्वायर करके लेके जाओगे, तो 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर का स्क्वायर. तो ये एक और ये एक कैंसल होगा. दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि टाइम ऑफ डिसेंट is 1 upon g sin theta under root of 2gh 1 plus k square by r square. I just care for this proportionality, क्योंकि प्लेन सेम है, थीटा सेम है, g सेम है, h सेम है, तो टाइम ऑफ डिसेंट is just proportional to 1 plus k square by r square. Hollow cylinder, solid cylinder. Hollow cylinder is a ring. रिंग के लिए k स्क्वायर बाय r स्क्वायर इज 1, तो रूट ऑफ 1 प्लस 1 दैट इज रूट 2. सॉलिड सिलेंडर इज अ डिस्क, हाफ, दैट इज रूट ऑफ 3 by 2. रूट 2 इज 1.414. दिस इज अंडर रूट ऑफ 1.5. ऑफ कोर्स रूट 2 से कम आएगा, तो रूट 2 से कम आएगा. तो टाइम ऑफ डिसेंट ज्यादा टाइम किसको लगा? हॉलो सिलेंडर को, राइट. तो पहले कौन पहुंचेगा? जिसको कम टाइम लगा. कम टाइम किसको लगा? सॉलिड सिलेंडर को. ओके, as shown in figure, at point O a mass is performing vertical circular motion. The average velocity of the particle is increased. Then at which point
the string will break. अभी string कौन से point पे break होगा ऐसा आपको पूछा है. Okay, so this is something that you know already. Tension in the string is maximum at the lowest point. तो जहां पे टेंशन मैक्सिमम वहां पे टूटने के चांसेस. Okay, all right. So next question is 22. Three identical metal balls, each of radius r, are placed touching each other on a horizontal surface such that an equilateral triangle is formed. When centers of three balls are joined, okay, so the question is like this. आपके पास तीन balls है, आपने इसको ऐसा रखा है कि जब इनके सेंटर्स को ज्वाइन करेंगे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा. ओके, तो अज्यूम, ठीक है, अभी मैं परफेक्ट ड्राइंग नहीं कर रहा हूं बट यू जस्ट हैव टू अज्यूम इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, समथिंग लाइक दिस. ओके, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनने के लिए वैसे बाय द वे इसको टच होना ही पड़ेगा. सो एनीवेज, सो यू विल हैव टू, इट इज समथिंग लाइक दिस. ओके, the center of mass of the system is located at line joining the centers of any two balls. No, center of one of the balls, horizontal surface, point of intersection of the medians. So point of intersection of the medians. Okay, तो ये जो है आपको थोड़ा अच्छे से सोचना है. So you have to think about it and you should know how to find three identical metal balls. Three identical metal balls, सबका radius r है. This radius is r, this is r, this is r, this is r, r and r. Okay, तो पहले बॉल का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे जाएगा, दूसरे का उसके सेंटर पे जाएगा, तीसरे का उसके सेंटर पे जाएगा. ओके, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ लोकेटेड होगा? लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ एनी टू बॉल्स, सेंटर ऑफ द वन बॉल, ये तो हो नहीं सकता. हॉरिजॉन्टल सरफेस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस. तो गो थ्रू इट, लुक at what is the possible solution to it. Do not blindly say कि point of intersection of the median. Work out करो इसको. तो work it out. कैसे करोगे? तीन मेथड है. As far as I can remember, I can recall. तीनों के सेंटर ऑफ मास को कुछ कोऑर्डिनेट दे दो. Horizontal surface is two-dimensional plane. तो इसको बोल दो 1 2 3. तो इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, दूसरे का x2 y2, तीसरे का x3 y3. सेंटर ऑफ मास को पता है कैसे फाइंड करते हैं, यू नो दैट. ओके, दूसरा मेथड है किसी भी एक के सेंटर पे ओरिजिन को फिट कर दो, चलेगा बेटर, क्योंकि मैंने इसलिए डिस्टेंसेस लिखे वहां पे. तो दैट इज व्हाई आई मेंशन डिस्टेंसेस. फाइंड करो, देखो कहां पे आता है. सो आई वुड सजेस्ट यू पुट origin at any one of the centers. डिस्टेंस मिल गया ना, डिस्टेंस मिल गया. ये 2r है which is x2, y2 0, सेकेंड बॉल का y2 0, राइट. इसका x कोऑर्डिनेट r आएगा, x कोऑर्डिनेट इज r for this, x3 is r और y3 फाइंड करो. व्हाट इज दिस y3? फाइंड कर सकते हो आप. अरे ये 2r डिस्टेंस है, ये r डिस्टेंस है. पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपको y मिल जाएगा. तो सॉल्व करो उसको. यू हैव टू सॉल्व दिस. डू नॉट से ब्लाइंडली एनीथिंग. अकॉर्डिंग टू मी you will get option number 8, but work it out.
because we cannot do all questions in this crash course. So now I think it's sufficient because it's already 2 hours since we started, more or less. So we should stop at this point and continue with more tomorrow.